Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your science class in science class of grade 4th. Okay, this is your science class of grade 4th, and here we are discussing chapter number 5. Here we are discussing chapter number 5, and name of your chapter is matter, solid, liquid and gas. The name of your chapter is matter, solid, liquid and gas. Okay. So students, you know that we are discussing chapter 5th, matter of science of grade 4, and in this chapter we have covered so many topics like matter we have covered, and you all know what is matter. बेटा इस वीडियो में हम चैप्टर 5th पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसका नेम है मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 2 or 3 videos. Okay, so now let's revise what we have discussed in previous videos. So there we have discussed about matter. हमने वहाँ पे matter के बारे में डिस्कस किया था, right? And you all know that what is matter? Anything that has mass and occupy space is called matter. ऐसी कोई भी चीज जिसमें कुछ भार होता है और वो कुछ जगह लेती है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम मैटर कहते हैं. Similarly, after that we have discussed that एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, और जिससे हम इस चीज पे आए थे, हम ये समझ पाए थे कि जो भी चीज हमारी सराउंडिंग में है वो सारी चीजें क्या होंगी? जो भी चीज हमारी सराउंडिंग में, दीज ऑल थिंग्स आर मैटर. तो वहां से हमने एक चीज और क्लियर कर ली थी कि एवरीथिंग इज मैटर. ठीक हो गया. मैटर के एग्जाम्पल में हमने ये क्लियर कर लिया था दैट एवरीथिंग इज मैटर. ओके, एवरीथिंग इज मैटर. After that we have started states of matter, right? उसके बाद हमने क्या शुरू कर दिया था? States of matter. States of matter में we have discussed about, particularly about solids. Okay, particularly about solids. हमने state of matter शुरू कर दिया था, और state of matter में हमने particularly solids के बारे में discuss भी कर दिया था. So first, before moving further, let's have a quick revision of solids also. Okay, तो solids में मैंने आपको ये बताया था कि solids की कुछ properties होती हैं. तो let's revise. क्या properties होती हैं बताइए? क्या कहा था मैंने? दिखाया था ना मैंने कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं तो ना तो उसका साइज चेंज होता है और ना ही उसका शेप चेंज होता है. तो वहां से हम किस चीज पे पहुंचे थे? हम एक चीज हमने क्लियर कर ली थी कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स का क्या होता है? हैव फिक्स्ड शेप, एंड उसके बाद एक नई चीज और बताई थी दैट दे हैव फिक्स्ड साइज. ओके, solids have fixed shape and solids have fixed size, right? ये दो चीज हमने डिस्कस कर ली थी. After that we have discussed one thing more. वो क्या डिस्कस किया था कि ठीक है, हमें ये तो पता चल गया था कि सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप है, सॉलिड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन वो है क्यों? तो उसके बाद हमने डिस्कस करा था अबाउट मॉलिक्यूल्स. किसके बारे में डिस्कस किया था? मॉलिक्यूल्स. एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सॉलिड्स में कैसे मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज होते हैं? टाइटली पैक्ड. किस तरीके से अरेंज होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं. TIGHTLY, टाइटली, PACKED, पैक्ड. तो क्लियर हो गया. जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें हमने ये डिस्कस किया था that we have particularly discussed about solids, and there I told you that solids have mainly 2 properties. And what are these properties? That solids have fixed shape and solids have fixed size. Then we have discussed that what is the reason that these solids have fixed shape or fixed size, and after that I have introduced you with the term molecules. First I have told you about atom, and then I introduced you with the term molecule, and there we have discussed about molecules,
or molecular arrangement in solids, and when we have seen that molecular arrangement, then we come to know that molecules in solids are arranged tightly. Molecules in solids are tightly packed. If you have some confusion, no need to worry. Just see why and what type of arrangement of molecules was there. One thing more I have told you now. Sorry. What type of arrangement in molecules there? So see. In this way I have told you, then if suppose this is one box, any object of solid, so in which way molecules will be arranged here? Like this. I told you ना कि कोई भी जगह नहीं बचेगी, सारे के सारा जो भी स्पेस होगा हमारा, it will be covered by the molecules. It will be covered by the molecules. ये चीज बताई थी आपको. And then we have discussed कि इस तरीके से हमारे molecules arrange हैं. And for explaining this also I have told you the example of two grounds. बताया था ना, ground one है जिसमें कि बहुत सारा स्पेस है लेकिन only two people are there, so they can move freely, nobody can bound them. और ground two में बहुत सारे लोग थे तो they cannot make any type of movement. ये दोनों examples बताए थे related to this. Yes. तो यहाँ पर हमारा सॉलिड्स कंप्लीट हो गया था. सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स का फिक्स्ड साइज, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई even after putting so much pressure we cannot change the shape or the size of the solids. Okay, so students, now today here we are going to start another state of matter. Today here we are going to start another state of matter, and its name is, you all know that. What is its name? Tell me. Yes, liquid. Because when we have discussed about solid, another one is liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. Or you can say liquids. So today we are going to discuss about liquid. Now see, liquid is not a very new term for you. Why? Because in your day-to-day life you deal with liquids so normally. होता है ना, आप जो पानी पी रहे हैं बेटा वो क्या है? It is example of liquid. आप जो अपने घर में मिल्क पीते हैं, it is example of liquid. जो आपके घरों में टैप से जो पानी आ रहा है, it is example of liquid. And so many things. Oil that you put on your head, it is also the example of liquid. तो ये सारी चीजें क्या है? ये लिक्विड के एग्जाम्पल हैं. तो पहले हम लिक्विड के एग्जाम्पल्स को जरा साइड पे लेते हैं. ओके, लाइक लिक्विड्स में हम क्या लिख सकते हैं? वाटर इज लिक्विड. ओके, देन मिल्क इज लिक्विड. ओके, देन यू कैन से जूस इज लिक्विड. ओके, देन you can say oil is also a type of liquid. Okay, these all are the liquid forms. आपने वाटर देखा है लिक्विड होता है, मिल्क देखा है लिक्विड है, जूस देखा है लिक्विड है, ऑयल देखा है लिक्विड है, राइट? These all are the example of liquids. So now today we are going to discuss about these liquids. अब देखिए, लिक्विड्स के बारे में बाकी कुछ भी बताने से पहले फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. ओके, जस्ट वेट, यू विल एंजॉय दिस क्लास डेफिनेटली. See beta, what is this? This is one glass. And in this glass you can see water is there. Okay, is it? It is clearly visible, right? This is one glass and inside of this glass there is colorful water, right? इस ग्लास में आपको क्या दिख रहा है? कलरफुल वाटर दिख रहा है. अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मैं अपने हैंड का मूवमेंट कर रही हूँ ये वाटर भी मूव हो रहा है. ठीक है, तो हमें इसमें कुछ कुछ क्या दिख रहा है? मूवमेंट सा दिख रहा है. ठीक हो गया. एक चीज अब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे. अब देखिए, ये जो वाटर मूव कर रहा है, ये अप डाउन जो आपको दिख रहा है बेटा ग्लास में, थोड़ा सा सोचिए क्या ऐसा कोई मूवमेंट हमने सॉलिड्स में देखा था?
नो, हमने इस तरीके का कोई भी मूवमेंट सॉलिड्स में नहीं देखा था। आपने देखा था ना, मैंने वो ऑब्जेक्ट वाटर बॉटल थी, एक स्टैच्यू था, उन दोनों चीजों को जब मैंने लिया उतना प्रेस किया, कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। जबकि अभी जो मेरा कंटेंट है इसके अंदर, वो देखिए, वो अच्छे से इवन जस्ट व्हेन आई एम होल्डिंग दिस, तब भी ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, राइट। एक चीज देख ली। अब हम देखते हैं, अब देखिए, जैसे मेरे ग्लास का शेप है वैसा ही मेरे ग्लास में जो कलरफुल वाटर है उसका भी शेप है, राइट। जैसे मेरे ग्लास का शेप है वैसे ही कलरफुल वाटर का भी शेप है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्या इसका ये शेप सेम रहेगा, क्योंकि अभी तो जो वाटर का शेप है वो ग्लास के शेप के जैसा है। लेट्स सी। नाउ सी, आई हैव वन कप हियर, ओके, वन कप। लेट्स सी क्या होता है। मैं देखिए, इस ग्लास का शेप बिल्कुल डिफरेंट है और इस कप का शेप बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखते हैं, लेट्स चेक कि क्या इसका शेप सेम रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, सो लेट मी पुट दिस हियर। ओके, सो व्हाट वी फाउंड कि नहीं, इसका तो शेप चेंज हो गया। इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये शेप क्यों चेंज हुआ होगा, बिकॉज देखो, इस ग्लास में तो ये जैसे ग्लास का शेप था वैसा हो गया। अब ये थोड़ा सा हमारा कर्व और डिजाइन वाला है, तो हमारा वाटर ने भी वही पोजीशन ले ली जो हमारे कप की थी, राइट। अभी देखो, फिर से ट्राई करते हैं। अभी हमारे कप के शेप में है, लिटिल सर्कुलर टाइप। अब हम इसे दोबारा से ग्लास में डालेंगे। लेट्स सी। तो देखो, अगेन उसने क्या किया, वो जो हमारे ग्लास का शेप था, सेम वाटर ने ग्लास का शेप ले लिया। वाटर वैसा ही तो दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि इसमें अगर कर्व वाला वाटर आया था तो जब हमने इस ग्लास के अंदर डाला तो ये अभी कर्व जैसा है। नो, ऐसा नहीं है। अब सी, as you have seen, I have shown you one activity in front of you. So from here one thing we have cleared that, हमें क्या क्लियर हो गया है यहाँ पर से कि लिक्विड्स का शेप जो है वो सेम नहीं रहता। तो हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ठीक है, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ओके, अब क्योंकि लिक्विड्स का शेप तो से फिक्स नहीं होता, तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है बेटा कि लिक्विड्स just take the shape of the container. Liquid takes cup shape of the container. Let's see what is given here. Yes, liquids takes the shape of the container. ठीक है, liquids हमारे कंटेनर का शेप ले लेते हैं। Do not, liquids do not have fixed shape, right? Second, अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये तो आपने देख लिया। अब लिक्विड्स कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ये भी आप समझ गए हैं, बट फिर भी मान लीजिए मैं कह रही हूँ और आप नहीं मान रहे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, हम कैसे मान लें? हमें क्या पता कि लिक्विड जो है कंटेनर का शेप लेते भी है या नहीं। सो फॉर दैट अगेन आई एम गोइंग टू शो यू एन एक्टिविटी। ओके, नाउ सी, दिस इज योर ग्लास, राइट? This is your glass. You can all can see here. This is your glass, and here this is one bowl. Now I am going to put this colorful water inside this bowl. And what you all found here, that this colorful water has taken the shape of the container. समझने की कोशिश करिए, जो लिक्विड्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो कंटेनर का शेप था, कंटेनर माने जो भी जिस भी चीज में हम लिक्विड्स को डाल रहे हैं, जैसे अभी मैंने लिक्विड्स को किस में डाला है, ये बाउल में डाला है, तो लिक्विड्स का जो हमारा कंटेनर का जो शेप होता है, लिक्विड्स उस शेप को ले लेते हैं। जैसे
यू कैन सी हियर, अभी मेरे पास ये बाउल था ना राउंड शेप का, सर्कुलर शेप का, तो इस बाउल का लिक्विड ने इस बाउल का शेप ले लिया. अगेन यू कैन सी, नाउ अगेन आई एम पुटिंग दिस back to this glass and you can see here again. What you can see here, that this glass has already taken the shape of that water which was earlier, shape of that glass which was earlier. Okay, मतलब कि जब मैंने इस बाउल से ये वाटर इस ग्लास में डाला तो बिल्कुल वही शेप हो गया जो ग्लास का पहले था. अगेन यू कैन सी, अब देख लीजिए ये ग्लास का शेप ऐसा है, ऐसा ही वाटर है. Again I am putting this inside this and now again you can see that this water has taken the shape of the container. Okay, so from here two concepts are clear, that liquid do not have fixed shape and liquid takes the shape of the container. Liquid takes the shape of the container, right? तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि लिक्विड का एक तो फिक्स शेप नहीं होता, दूसरा they take the shape of container okay. ठीक, यहां से हमारी लिक्विड्स की टू प्रॉपर्टीज तो हमें बड़े आराम से क्लियर हो गई. एक कि लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, दूसरा लिक्विड जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका जैसा शेप होगा वैसा ही हमारे लिक्विड्स का शेप भी हो जाएगा. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग इज देयर, वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज देयर. सो फॉर दैट जस्ट वेट, लेट मी इरेज दिस. लुक हियर, हमें क्या पता चल गया, लिक्विड्स डू नॉट have fixed shape. Okay, then what we have discussed, takes the shape of container. Now one more property of liquids is there, and for that again I am going to show you one activity, right? When liquid we can see in our daily life, so हमें पता भी तो सामने से होना चाहिए ना हर चीज के, हम जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं. Yes, now see, just wait for a minute. See beta, this is glass and it is filled of colorful water, and now you can see this is another glass. First tell me the difference between both the glasses. What is the difference between both the glasses? That this glass is longer and this one is shorter. Okay, ये बड़ा ग्लास है हमारा और ये छोटा ग्लास है. अब मैं ये अलग साइज का ग्लास क्यों लाई होंगी? अच्छा, अब आप ये सोचिए कि जो वाटर मेरा इस ग्लास में है, जब मैं देखिए इस ग्लास में तो ये भरा हुआ है, राइट? अब जब मैं इस वाटर को ये लॉन्गर ग्लास में डालूंगी तो क्या ये हमारा ग्लास फिल हो जाएगा? और अगर फिल होगा तो क्यों होगा, और अगर फिल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? दोनों चीज सोचिए, राइट? तब तक मैं आपको ये एक्टिविटी करके दिखाती हूँ. सो जस्ट सी, दिस इज वाटर, ओके, एंड इन स्मॉलर ग्लास. इसका कितना वाटर है आप सब देख सकते हैं. नाउ सी, अब मैं इस वाटर को इस ग्लास में डाल रही हूँ. एंड व्हाट वी फाउंड, ओह नो, ये ग्लास तो हमारा भरा ही नहीं. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ग्लास को तो भर जाना चाहिए था, पर ये तो भरा ही नहीं. पर अगर ये पूरा नहीं भरा तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. क्योंकि बेटा लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम माने कि कितना उसका, वो कितना है, दैट कम्स अंडर वॉल्यूम. कितना लिक्विड है वो वॉल्यूम्स के अंदर आता है.
तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड है। और हमें पता कैसे चला? अगर लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता तो ये जो हमारा बड़ा ग्लास था, जब हमने इसमें वाटर डाला तो इस ग्लास को पूरा भर जाना चाहिए था, पर हुआ क्या? जितना वाटर छोटे ग्लास में था वाटर उतना ही था। हमने कंटेनर जरूर चेंज किया, लेकिन लिक्विड जितना लिक्विड था वो लिक्विड नहीं चेंज हुआ। समझ में आई बात? ऐसा नहीं था कि अगर बड़े ग्लास में हमने लिक्विड डाला तो हमारा ग्लास भर गया हो और लिक्विड बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। द अमाउंट, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम। जो क्वांटिटी लिक्विड की थी उतनी ही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारा लिक्विड इसमें तो हाफ है, अब जब हम इसमें डालेंगे अगेन तो व्हाट वी विल सी कि ये फुल हो गया। ये फुल हो गया क्योंकि इतना ही तो लिक्विड था ना। देखिए ऐसा तो नहीं कि इसमें कम हो गया या ज्यादा हो गया। आप फिर से देख सकते हैं, जितना भी हमारा जितना भी हमारा लिक्विड इस ग्लास में था, वॉल्यूम या वॉल्यूम को आप क्वांटिटी के हिसाब से समझ सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी लिक्विड की इस ग्लास में थी, व्हेन वी हैव poured this liquid in this larger glass, it remains the same. And why I am saying so? Because you can see again, I have done this. I have poured this water in this longer glass, and what I found that the quantity of water is not changed. The volume of water is not changed. जितना पानी हमारा था उतना ही है। अब इसे समझने के लिए I have one more example for you, and that is, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं that suppose this is one bucket. Okay. This is one bucket, and in this bucket this amount of water is there. Okay, अब इस बकेट में इतना वाटर है, राइट? और जब आपने इस वाटर को यूज करना है, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग स्मॉल मग टू टेक आउट वाटर फ्रॉम दिस। ठीक है, तो अब उस मग में जब आप वाटर निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा? जितना आपके मग का साइज है उतना ही तो वाटर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर मग में डाला तो जितना था सारा का सारा उसमें आ गया। नो, ऐसा नहीं होगा। मींस जो वॉल्यूम था, अगर यहाँ पानी ज्यादा था और आप किसी में पोर कर रहे हैं तो जो जितना आया वो आ गया और जो बच गया वो नीचे ही रह जाएगा। मान लीजिए इतना आपने निकाल लिया तो इतना वाटर नीचे ही रह जाएगा। बाय Because liquids property says that liquids have fixed volume. Liquids का volume change नहीं होता, उनकी quantity change नहीं होती। इसे समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। Suppose you have one water bottle, okay? One cold drink water bottle. This is smaller cold drink water bottle, okay? ऐसे कोई स्मॉलर आपकी कोल्ड ड्रिंक की वाटर बॉटल है, लाइक दिस, और एंड यू हैव वन मोर बिग वाटर बॉटल। ओके, लाइक दिस यू हैव वन मोर बिग वाटर बॉटल, एंड नाउ यू आर सेइंग टू योर पेरेंट्स दैट प्लीज गिव मी दिस ड्रिंक और दिस जूस इन माई वाटर बॉटल। अब आप पेरेंट्स को कह रहे हैं कि जो आपका जूस है या जो आपकी ड्रिंक इस वाटर बॉटल में है वो आप मेरे वाटर बॉटल में दे दीजिए। तो अब बेटा ये बात सोचिए कि जब आपके पेरेंट्स आपको ये वाटर बॉटल में आपकी ड्रिंक या जूस पोर करेंगे, उसमें डालेंगे, तो क्या ऐसा होगा कि वो बड़ी वाटर बॉटल है तो वो पूरी भर जाएगी क्योंकि वो बड़ी है? नो। अगर ये फुलफिल थी, यहाँ तक पूरी भरी हुई थी, तो जब आप इसे पोर करेंगे, इसका जो भी जूस या जो भी इसमें वाटर था वो सिर्फ इतना आएगा। इतना आएगा मीन्स ये यहाँ तक इस तरीके से जैसे इतना ही फिल होगा, जबकि जो ये वाली आपकी जो फर्स्ट वाली वाटर बॉटल थी उसमें आपका जूस पूरा भरा हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमारे लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई अबाउट लिक्विड्स, एंड दैट इज that liquids have fixed volume.
That is, liquids have fixed volume. Have fixed volume. ठीक, तो हमारे लिक्विड्स की 3 मेन प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो गई. दैट इज लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. ये सब क्लियर हो गया. अब हमारी यहाँ पे बात आती है अबाउट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड्स और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. ठीक है, कि हमारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कैसे अरेंज होते हैं. तो अब ये मान लीजिए, सपोज दिस इज वन बॉक्स. ओके, दिस इज वन बॉक्स. अब इस बॉक्स में बेटा क्या है, ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स आपको अभी लिक्विड्स का बॉक्स है मान लेते हैं. ठीक है, लिक्विड्स, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज वन बीकर. बीकर मतलब एक ऐसे जार है, आप जार की तरह समझ लीजिए. ओके, दिस इज वन जार. अब इस जार में क्या है, लिक्विड इज देयर. ओके, अब देखो लिक्विड है. अब जैसे मैंने आपको बताया था फॉर सॉलिड्स, दैट इन सॉलिड्स व्हाई वी आर अनेबल टू प्रेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. हम क्यों, जब हम सॉलिड्स ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आते या उनका शेप या साइज चेंज नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? एंड एट लास्ट आई टोल्ड यू इट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत फिक्सली अरेंज थे, इसलिए ऐसा होता था. तो अब क्योंकि लिक्विड्स का शेप तो बिल्कुल हमारा सिमिलर नहीं रहता, फिक्स्ड शेप नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि लिक्विड का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में अरेंज्ड हैं वो अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं, सॉलिड्स की तरह टाइटली पैक्ड नहीं होते. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें कैसे होगा, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, एंड देन लाइक दिस another, this one, this one, this one, this one, this one, like this type of arrangement is there in liquids. इसीलिए इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, they have a gap. इसीलिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे, like these are the molecules of liquid, these are the molecules of liquid. इसलिए मैंने आपको जब एग्जाम्पल दिखाया था, एक्टिविटी दिखाई थी, आई टोल्ड यू कि बेटा देखो ये लिक्विड हमारा हिल रहा है, राइट? ये जो मूवमेंट हो रहे हैं ना बेटा, ये लिक्विड का ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट है ही इसी वजह से क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो टाइटली पैक्ड नहीं है, वो थोड़ा लूजली पैक्ड है. लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स. सॉलिड्स के हिसाब से एक तो लूजली होता है कि बिल्कुल लूज, तो इतना लूज नहीं है, लेकिन क्या है, लूजली पैक्ड है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. क्योंकि सॉलिड्स में तो बिल्कुल फिक्स था ना, टाइट भरा हुआ था, कोई जगह ही नहीं थी. लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं है. इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. इसी वजह से लिक्विड्स हैव मूवमेंट. यही कारण है कि जब आपका कभी पानी गिर जाता है या मिल्क गिर जाता है तो वो एक पोजीशन में नहीं करता, वो फ्लो करने लगता है. क्या करने लगता है? बहने लगता है. क्यों बहता है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्पेस है, उसमें स्पेस है तो मूवमेंट करते हैं वो मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए आपका लिक्विड का फ्लो आ जाता है. बट आपने देखा कभी कि आपके कोई पेन गिरी हो, पेंसिल गिरी हो और वो बह जाए, एक इतनी सी पेंसिल थी और वो बह के इतनी बड़ी हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता. बट आपने देखा होगा अगर आपका 1 ग्लास वाटर भी गिरेगा तो वो जहां तक जा पाएगा, जहां तक उसको स्पेस मिलेगी, वो उतना जितने उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी उसकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग वो उतना चले जाता है, उतना फ्लो कर जाता है. तो व्हाई इट इज सो? इट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट. जो हमारे लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो is loosely packed as compared to solids. ठीक है, तो लिक्विड्स, यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई कि इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम. लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेस होती है. अब आप यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे
अगर आपको लिक्विड्स और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली सी हियर अगेन. दिस इज वन बॉक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग solid and this is one box which is representing liquids. Okay, एक बॉक्स से solid represent कर रहा है. This is representing solid, this is solid and this box is representing liquid. अब इन दोनों में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देख लेते हैं. राइट, तो सॉलिड्स का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है आपको पता है, सॉलिड्स में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है. टाइटली पैक्ड, उनमें कोई स्पेस ही नहीं है आपस में बीच में. ओके, these molecules are so tightly packed as you can see on board, and this I have already told you earlier also. Okay, so this type of arrangement is closely packed or tightly packed arrangement of molecules is found in solids. Solids में मिलता है. Now in case of liquid, liquid में क्या होता है? In liquids you can see molecular arrangement is like this. इतना स्पेस होता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पास भी नहीं है. जैसे ये क्लोजली पैक्ड है ना, इतना क्लोजली पैक्ड नहीं है, लूजली और लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स. एंड दिस इज ओनली द रीजन दैट व्हाई लिक्विड फ्लो. लिक्विड जो बहता है, हमारे सॉलिड नहीं बहता ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट जहां है वो वहीं रहेगा. बट लिक्विड का क्या होता है कि लिक्विड फ्लो, आपने कभी पत्थरों को बहते हुए ऐसे मीन्स जैसे पानी गिरता है तो बहता है, आपने ऐसे कोई पत्थर गिराएंगे, आप पेंसिल गिराएंगे, इरेजर गिराएंगे तो क्या उसे बहते हुए देखा है? नो. व्हाई? बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज सो closed, so tightly packed molecular arrangement is there. But in liquid, molecules have space in between them, and that's why liquids flow. Okay, और ध्यान दी होगी, कभी भी आपने ये देखा है कि जब आपके घर में बेटा जब पानी आता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं. आपके मान लीजिए घर में एक टैंकी होगी, आपने देखी होगी, वो टैंकी में पानी डालने के लिए, उस टैंकी को पानी से भरने के लिए आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? स्पेसिफिकली मोटर का यूज करते हैं. हमें एक स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है कि नीचे का पानी ऊपर चले जाए और नीचे का पानी ऊपर जाए और वहां टैंकी में भर जाए. लेकिन कभी आपने ये देखा कि जो ऊपर भरा हुआ पानी होता है, अगर वो भर जाता है तो खुद ही नीचे गिरने लग जाता है. हम उसे नीचे गिराने के लिए तो अलग से एफर्ट नहीं करते, या फिर जो फिल टैंकी है उसमें से पानी आराम से नीचे आ जाता है, उसके लिए आपको कोई दूसरा एफर्ट नहीं करना पड़ता. मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ. जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं मान लीजिए कोई वाटर फ्लो कर रही हूँ, या नॉट लाइक दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे क्या बताया मैंने आपको कि आपके घर में जब पानी आता है बेटा और आपके टेरेस में पानी पहुंचाना होता है तो आपके पेरेंट्स को एक स्पेशल एफर्ट करना पड़ता है जिसके लिए मोटर यूज होती है, जिसके थ्रू हम पानी छत में पहुंचाते हैं. राइट, आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स कहते हैं पानी फिनिश हो गया, मोटर ऑन कर दीजिए. लाइक, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी नीचे है उस पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, टेरेस तक पहुंचाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि पानी नीचे से ऊपर खुद नहीं जा सकता. लेकिन जब वहीं पे आपकी टैंकी भर जाती है और वो फुल टैंकी से जब पानी नीचे गिरता है तो क्या स्पेशल एफर्ट लगता है? क्या आप अलग से पानी को नीचे गिराने के लिए जाते हैं? नो. अगर टैंकी भर गई है तो खुद से पानी नीचे गिर जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वाटर की एक प्रॉपर्टी और होती है, नॉट वाटर, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी एक और होती है कि इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल. इसका वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू फॉर दैट. जस्ट लिसन केयरफुली हियर. एक मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू. जस्ट सी, आपने ये तो जरूर देखा होगा दैट दीज आर द माउंटेन्स एंड रिवर फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन एरिया. ये तो आपने देखा होगा ना कि जैसे अगर हमारे माउंटेन हैं लाइक दिस, दीज आर द माउंटेन्स, और माउंटेन्स के बीच से कहीं से हमारी इस तरह रिवर आ रही होती है और वो रिवर फिर नीचे धीरे धीरे प्लेन एरिया की ओर जा रही होती है. राइट, in this way I hope you have seen or you have seen the sceneries in
television, many where you have seen like this कि ऊपर से पहाड़ों से पानी फ्लो करते हुए नीचे को आ रहा है, प्लेन एरिया की तरफ आ रहा है। अब जरा ये सोच के देखिए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ये नीचे का पानी ऊपर पहाड़ों की तरफ अपने आप जा रहा हो, इस डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट देखा है कि प्लेन की तरफ से पहाड़ों की तरफ पानी खुद से चले जाए? नो, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो हमें अलग से ही कोई एफर्ट करना पड़ेगा, कोई मशीनरी यूज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे जो हमारे प्लेन्स के पानी को ऊपर पहाड़ों की तरफ ले जाए। सो व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल। आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि वाटर की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? टू फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक है, हमेशा वाटर कहाँ से फ्लो होता है? फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है बेटा, कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ खुद से नहीं जाएगा। आप एफर्ट्स करेंगे तब जाएगा, आपको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे तब जाएगा, बट खुद से वाटर कभी भी नीचे की तरफ से ऊपर को नहीं जाएगा। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? दैट इट फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, राइट? इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सो वन मोर थिंग यहाँ से हमें पता चल गई दैट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, molecules are loosely packed, molecules are loosely packed as compared to solid, समझ सकते हैं आप। उसके बाद water flow from, liquids flow from higher level to lower level, higher level to lower level। So it is clear now, it is so easy। लिक्विड्स की सारी प्रॉपर्टीज हमने समझ ली विद बेस्ट एग्जांपल्स। आई होप ये एग्जांपल्स ने आपको हेल्प किया होगा समझने में। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, राइट? देन दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू lower level। So come in page number 40, let's have a quick reading of that, though we have discussed every point। Start molecules in liquid, para number 3rd, okay? Repeat after me। Molecules in liquid are loosely packed, okay? Hence liquid do not have fixed shape। ये हमारा clear हो गया। They take up the shape of the container, दे आर poured into, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ये भी हमें पता है। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये भी हमें पता चल गया। आफ्टर दैट द वाटर यू ड्रिंक, मिल्क, जूसेस, कुकिंग ऑयल यूज्ड बाय योर मदर, द पेट्रोल, डीजल on which buses, cars and scooters runs, all are liquids। So beta, in today's class we have discussed and completed our topic liquids। So in next class we will start another state of matter, that is gas। Till then revise each and everything and do whatever thing is given in PDF form, and please complete your notebook work, don't leave anything pending, okay? I hope you have enjoyed this class। Thank you and have a nice day ahead।